Hello students, I am here with the next video of chapter 3, water. In the previous video I was explaining you the properties of water, in which I explained you about the density. Water has its maximum density of 1 gram per centimeter cube at 4 degrees Celsius, because at 4 degrees Celsius water is at its मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल सबसे क्लोज होते हैं. दैट्स वाई डेंसिटी इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. बट व्हेन टेम्परेचर गो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस देन वाटर स्टार्ट शोइंग द एनोमलस एक्सपेंशन. जो उसका स्ट्रेंज बिहेवियर है, जो उसका अनयूजुअल बिहेवियर है, वो 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर नीचे जाने पे शो होता है. व्हेन अनलाइक अदर सब्सटेंस वाटर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिंग, और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय वाटर एक्सपैंड होना शुरू कर देता है. बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ एक्चुअली वेरी मच हेल्पफुल फॉर द एक्वेटिक और मरीन लाइफ टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. जब बहुत सर्दी होती है और रिवर का, लेक का पानी फ्रीज हो जाता है, लेकिन तब भी एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे कैन सर्वाइव इन दैट कोल्ड वाटर, फ्रोजन वाटर ऑल्सो. वाई इज़ इट सो? That is because of the anomalous expansion of water. Now let me explain you with this diagram. Actually this is the upper layer of water. Okay, so what happens when the temperature starts falling down? Okay, so temperature comes at 10 degrees Celsius, then 5, then 4. When the temperature reaches 4 degree Celsius, जो outer temperature, atmosphere का temperature है, जब 4 degree Celsius पे आता है, then the upper layer of water, it experiences the temperature of 4 degrees Celsius at which water contract to its maximum, the density become maximum and it becomes heavier. वो जो upper layer है उसकी density सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो heavy होके वो layer settle down कर जाती है. ऐसे ही फिर जो नीचे की लेयर ऊपर आती है वो भी जब 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फेस करती है, अगेन द डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, इट गेट्स हैवियर एंड सेटल डाउन. धीरे धीरे ऐसी लेयर भारी हो के नीचे सेटल डाउन करती जाती हैं और 4 डिग्री सेल्सियस, उन लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है. बट सून द टेम्परेचर ऑफ द वेदर इट इज़ ऑल्सो decreasing. So when the temperature falls below 4 degrees Celsius, then slowly it reaches to 0 degrees Celsius. ऐसे लेयर बाय लेयर नीचे सेटल होता रहता है और धीरे धीरे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी फॉल हो रहा है, लो डाउन हो रहा है. व्हेन इट रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस, एट दैट टाइम द अपर मोस्ट लेयर which has faced that temperature will get freezed. Okay, only the upper layer get freeze and the lower layers which are below this frozen layer, they are not frozen, because this, once the layer of ice is formed at the topmost layer of water, it act as a blanket, because it is an insulator. जैसे ही ये अपर लेयर फ्रीज होती है आइस के रूप में, वो आइस एक इंसुलेटर का काम करती है और जो बाहर की ठंडी हवा है जो टेम्परेचर को लोअर डाउन करी, उस हवा के लिए एक ब्लैंकेट बन जाती है और उस टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो इंटरनल लेयर्स पे नहीं होने देती. एंड द इंटरनल हीट ऑल्सो कुड नॉट एस्केप आउट. तो जो इंटरनल हीट है वो बाहर नहीं जा पाती और जो बाहर की ठंडक है वो अंदर नहीं आ पाती है. और चूंकि हमारी जो नीचे की लेयर्स जो हैवी होके सेटल डाउन हो गई थी, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ एनफ फॉर द मरीन लाइफ और द एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव. Okay, so sometimes a question may be asked, how anomalous expansion of water help the aquatic life to survive. तो आप यही बात बताएंगे. When the temperature reaches 4 degrees Celsius, the layer gets denser, the layer get contract and density become maximum, and that due to heavier nature that layer settle down at the bottom. Again the next layer which experience 4 degrees Celsius, it also settles down at bottom. Soon the temperature reaches to 0 degrees Celsius, then only the uppermost layer of water freezes, which act as a blanket and does not allow the internal heat to escape out and the external cold wind to come inside. So the internal temperature of water is still 4 degrees Celsius, which is enough for the marine life to survive. Now coming to next property, that is latent heat of fusion of ice. Latent heat of fusion of ice. Fusion means melting of ice. तो heat of melting of ice का मतलब क्या? It is the amount of heat which is required to change a solid into liquid at its melting point without any change of the temperature. यहाँ हम एक सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं,
the amount of energy which is required by solid ice to change its states from solid to liquid at its melting point. आपको पता है the melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस. उस टेम्परेचर पे जब मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है then the melting does not start विदाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस जो सॉलिड आइस है वो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ही मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है. तो वो एनर्जी कितनी है 336 जूल पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम जो आइस है वो 336 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. सो and the same amount of energy will be released in the reverse process. जब melting होता है change of ice into water, that process requires energy. How much energy? 336 joule per gram of energy is required to change solid ice into water at its melting point, and the same amount of energy is released when 1 gram of water solidified to form 1 gram of ice at 0 degree Celsius. जितनी एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट में एब्जॉर्ब होती है मेल्टिंग प्रोसेस में, उतनी ही एनर्जी जो है वो फ्रीजिंग प्रोसेस में रिलीज़ हो जाती है. अगर वही हम लिक्विड अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर को रख दिया जाए, बिकॉज यू नो फ्रीजिंग एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट इज सेम, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक साइड आप आइस को रखिए तो वो मेल्ट होना शुरू कर देगी इतने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और वहीं अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लिक्विड वाटर को रख देते हैं तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा. बट इन दिस प्रोसेस इट विल स्टार्ट रिलीजिंग, वो अपने अंदर से 336 जूल पर ग्राम ऑफ एनर्जी रिलीज करने लगेगा, एटमॉस्फेयर पे निकालने लगेगा, क्योंकि उसको और कूलर पार्ट में जाना है, सॉलिडिफाई होना है. तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू सॉलिडिफाई. अच्छा, ये लेटेंट वर्ड इनके साथ क्यों जुड़ता है? लेटेंट मीन्स हिडन. ये हीट ऑफ फ्यूजन ये लेटेंट है, मतलब ये छुपी हुई है, बिकॉज यू कांट सी, यू कांट ऑब्जर्व दिस हीट इन दी थर्मामीटर. जब भी एक बार कोई स्टेट का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, वेन एवर अ सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड और अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर्स, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन देयर इज़ नो फर्दर चेंज इन दी टेम्परेचर. ये प्रोसेस कब शुरू हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हुआ. तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको थर्मामीटर पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखेगा. दैट इज़ द मेन थिंग, बिकॉज वॉट एवर एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब्ड इज बीइंग यूज्ड अप टू चेंज द स्टेट. वो सारी की सारी एनर्जी स्टेट को चेंज करने में यूज़ होती जा रही है, इसलिए वो थर्मामीटर पे शो नहीं हो रही है. दैट्स वाई इट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, उसको हम हिडन हीट कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है. जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हमारे थर्मामीटर का भी टेम्परेचर राइज करना चाहिए, लेकिन थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता रहेगा जब तक आपकी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस में उसने जितनी हीट को एब्जॉर्ब किया वो सारी की सारी हीट यूज्ड अप हो जाएगी इन द मेल्टिंग प्रोसेस, इन द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. Vaporization means changing of liquid into vapors. So of course it is the amount of heat required to change water into water vapor at its boiling point without any change of temperature. तो boiling point water का क्या है? 100 degree Celsius. So latent heat of vaporization is the amount of heat which is required or which is absorbed by water to change into water vapor at its boiling point without any change of the temperature, and its value is found to be 2268 joule per gram. 1 gram वाटर जो है वो इतने जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? एवापोरेशन रिजल्ट इन कूलिंग. होता क्या है, आप कई एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं व्हेन यू कैन सी दैट एवापोरेशन रिजल्ट इन कूलिंग. व्हेन एवर द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन स्टार्ट्स और वेपोराइजेशन स्टार्ट्स, दे रिक्वायर एनर्जी टू चेंज फ्रॉम लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर. अब वो जो एनर्जी उनको चाहिए वो लेंगे कहाँ से? ऑफ कोर्स दे विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. तो जब वो सराउंडिंग से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, देयर बाय दे विल लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. सराउंडिंग पर वो कूलिंग इफेक्ट डालते हैं.
जहाँ एवापोरेशन होता है वो एरिया ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एवापोरेशन यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई वो उन्होंने अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की, दैट्स वाई इट रिजल्ट इन कूलिंग। जब हमको स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग में के बाद हमारे बॉडी एकदम ठंडी क्यों हो जाती है? बिकॉज द स्वेट, जो पसीना है, जैसे ही आपके बॉडी में स्वेट आता है रेडिली इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर। जैसे हवा चलती है, पंखा चलता है और ड्राइनेस जहाँ पे होती है तुरंत एवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब एवापोरेशन होता है तो वही जो स्वेट ड्रॉप्स हैं वो आपकी बॉडी से ही हीट को एब्जॉर्ब करते हैं टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो जब आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है देन योर बॉडी फील्स कूलिंग इफेक्ट। ओके, so same amount of energy will be released when 1 gram steam condenses to form 1 gram of water. I told you that this much amount, how much amount? 2268 joule per gram of energy is being absorbed to convert liquid into vapor state, and same amount of energy will be released when 1 gram of steam will condense to form 1 gram of water at 100 degree Celsius. उसी टेम्परेचर पे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। सून द वेपर्स विच आर फॉर्म दे कैन कंडेंस, वो ठंडी होके कंडेंस होने के बाद उतनी ही एनर्जी वापस रिलीज कर देती हैं। So due to high specific latent heat of condensation, steam causes more serious burns than boiling water. जब भी बर्न्स होते हैं तो वो बर्न, बॉइलिंग वाटर इतना बर्न सीरियस नहीं करता है जितना कि स्टीम। क्यों? क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत हाई है। स्टीम ने 2268 जूल पर ग्राम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है in order to change the state. Now the same amount of energy will be released when the steam is undergoing the process of condensation. तभी कभी जब आप किसी कंटेनर में जिसमें वाटर वगैरह बॉईल कर रहे हैं तो आप उसके लिड को हटाते हो तो जो इतनी सडन उसमें से जो स्टीम निकलती है वो आपके हाथ को बहुत बुरी तरह से इट मे कॉज द सडन बर्न ऑफ योर हैंड बिकॉज स्टीम हैज़ मोर हीट देन दी बॉइलिंग वाटर. Now coming to specific heat capacity. What is specific heat capacity? It is amount of heat absorbed by 1 gram of water to raise its temperature by 1 degree Celsius. अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री बढ़ा तो इतनी हीट एब्जॉर्ब की, फिर और 1 डिग्री टेम्परेचर वाटर का बढ़ना है तो और इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर और 1 डिग्री टेम्परेचर वाटर का बढ़ाना है तो और हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो वो हीट है कितनी? द वैल्यू इज 4.2 जूल्स. सो इट इज़ हाई. सो ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर डज नॉट शो द चेंज इन इट्स टेम्परेचर वेरी सून. इसलिए पानी का टेम्परेचर ना बहुत जल्दी बढ़ता है और ना बहुत जल्दी घटता है. तो इसलिए हम वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं बिकॉज व्हेन ऑल द थिंग्स which are experiencing the extreme hot condition they readily get hot. बहुत जल्दी गर्म हो जाती है गर्म टेम्परेचर पे. लेकिन वाटर के साथ क्या है? वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के लिए 4.2 जूल्स एनर्जी का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है. तो इसलिए इतनी एनर्जी आसानी से एब्जॉर्ब होना इतना आसान नहीं है. तो इसलिए वाटर का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे राइज करता है. तो जब बहुत हर जगह गर्मी है इस समय, दिस टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग वेरी हॉट वेदर, बट व्हेन यू टच द वाटर, वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में बहुत टाइम लगता है. तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से जहाँ पे लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि द कोस्टल एरिया विच आर सराउंडेड बाय वाटर, दे हैव द मॉडरेट टेम्परेचर. They modify the climate by of the nearby land because that's why they remain warmer in winter and cooler in summer. क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ रही है तब वाटर जल्दी गर्म नहीं होता और जब बहुत सर्दी पड़ती है तो वाटर बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता. So it is due to the high specific heat capacity. Now coming to water as a universal solvent. That is the main point with which we have to start this topic or chapter. Water everybody knows, many times you have gone through that water is a universal solvent. तो जब भी आपसे पूछा जाता है why water is universal solvent, आप बोलते हो because it dissolves many substances. No, that is not the reason. ये तो एक
ये तो आपने उसी बात को उसी की एक फेवरेबल चीज़ बता दी कि हाँ वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है. एंड दोस सॉल्यूट्स में बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. इट कैन डिज़ोल्व एनी टाइप ऑफ सॉल्यूट्स in solid, liquid or gaseous state. But why it is a universal, why such property of water is seen? इतना ज़्यादा solubility water में क्यों है? That reason is very important. Two main reasons are there. First is high dielectric constant. Water has very high dielectric constant. What is dielectric constant? Dielectric constant is a property which helps to reduce the force of attraction between the oppositely charged ions. Generally जब हम वाटर में सॉल्ट डिजोल्व करते हैं ना, सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक मीन्स विच आर मेड अप ऑफ आयन्स. लेट मी शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स. जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है? इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ आयन्स, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स और बॉन्ड्स आप पढ़ेंगे. आयनिक और कोवलेंट सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. तो आयनिक मतलब द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस. अब ये आयंस के बने हुए हैं तो इसलिए इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है which can't be broken easily. Electrostatic force of attraction, you know, it is the force of attraction between two oppositely charged particle. तो बहुत strong force of attraction है, उसको तोड़ने का काम वाटर के पास इसलिए आसान है because it has very high dielectric constant which help to reduce this force of attraction. इस force of attraction को वो weak कर देता है जिसकी वजह से ये bond finally टूट जाता है and ions are released and the salt is set to get dissolved. जैसे ये आयन्स टूट के रिलीज़ हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ सॉल्ट अब डिज़ोल्व हो गया. सेम थिंग कैन सी पोटेशियम सल्फेट, इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट. सो व्हेन इट आयनाइज, जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या रिलीज़ करेगा? इट विल गिव यू K2SO4 है ना, 2 पोटेशियम आयन and 1 sulfate ion. So whenever it is dissolved in water, water breaks the force of attraction between these opposite ions and they are released in the water and it is said to get dissolved. तो पहला रीज़न क्या है वाटर का? To be a universal solvent, it has very high dielectric constant. Second reason is water has polarity. एक्चुअली दोनों ही चीज़ों को आप एक ही मान सकते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है क्योंकि वाटर पोलर है और वाटर पोलर है इसलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है. बोथ आर ऑलमोस्ट बोथ आर फुलफिलिंग ईच वन ऑफ देम. तो वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी थोड़ा सा मैं अभी रफ आइडिया दे रही हूँ. मेन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 4. देन यू विल गेट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक. जैसे कि HCl है, हम HCl को पोलर कंपाउंड कहते हैं. पोलर मीन्स जैसे कि आप मैग्नेट को देखते हो ना, इफ़ यू कंसिडर अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में क्या होता है? इट हैज़ 2 एंड्स ऑफ अपोजिट पोल, एक नॉर्थ दूसरा साउथ. That's why it is polar. The same thing you can observe in this compound. It also has 2 ends of opposite charges. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इसके बीच में बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, so the shared pair they get shifted more towards chlorine. क्लोरीन के ज़्यादा पास शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू विच क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल, ये मैं साइन बना रही हूँ पार्शियल के लिए, नॉट परफेक्ट नेगेटिव बट इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब चूँकि हाइड्रोजन से दूर हो गए देन हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस कंपाउंड बिकम पोलर बिकॉज इट हैज़ 2 एंड्स ऑफ अपोजिट चार्जेस. अब आप इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज ले जाओगे तो रिपेल होगा और नेगेटिव ले जाओगे तो अट्रैक्ट होगा. तो और इसका रिवर्स प्रोसेस, यहाँ नेगेटिव ले जाओगे तो रिपेल होगा, पॉजिटिव ले जाओगे तो अट्रैक्ट होगा. तो दोनों ही एंड में अपोजिट नेचर हो गया ना. दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज सेड टू बी पोलर इन नेचर. सेम थिंग इज सीन इज इन वाटर ऑल्सो. वाटर इज ऑल्सो पोलर बिकॉज ऑक्सीजन forms 2 bonds with 2 hydrogen atoms and both these bonds are covalent bonds which are formed by sharing of electrons. तो ये जो shared pair of electrons हैं ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होके उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. दे get shifted towards oxygen.
अब ऑक्सीजन के ज़्यादा क्लोज हो गए तो ऑक्सीजन के पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन चूँकि इससे बहुत दूर हो गए हैं तो हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो बोथ दीज compounds are polar in nature, so two polar compounds easily get interacted due to dipole interaction. अब आप HCl को अगर वाटर में डिजोल्व करते हो तो इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो HCl का क्लोराइड यानी जो नेगेटिव साइड है दैट विल बी सराउंडेड बाय द पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर, एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ HCl विल गेट सराउंडेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर. इसके इधर इस साइड में हाइड्रोजन आयंस वाला पार्ट वाटर का सराउंड कर लेगा, और इस हाइड्रोजन आयन के साइड में ऑक्साइड वाला जो है ऑक्सीजन वाला पार्ट सराउंड कर लेगा. देन दे विल अप्लाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इसको इधर खींचेगा अपनी तरफ, इसको इधर खींचेगा. फाइनली द बॉन्ड विल ब्रेक and it will release hydrogen and chloride ion in the solution and it will get dissolved in water. Okay, so these are the two factors which are responsible for water as a universal solvent. First is high dielectric constant, other is polarity. Both these factors are responsible to break the force of attraction between the ions or the atoms of a molecule, so that the ions are released and the substance is said to be dissolved. Okay, so other properties I will explain you in the next video.